دو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہے ہم. آداب ناظرین، میں ماہر آپ کا استقبال کرتی ہوں ہمارے خاص پروگرام خاص ملاقات میں. ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو عالمی شہرت یافتہ شاعر ہیں اور آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے کئی برسوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور اردو عرفان اعظمی صاحب، استقبال ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام خاص ملاقات میں. ناظرین، عرفان اعظمی صاحب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں اور دہلی کے بہت بڑے شاعروں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. عرفان اعظمی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال شاعری کے متعلق، آپ کو شاعری کا شوق کب سے ہوا؟ میرا گھرانہ ایک ادبی گھرانہ تھا، تو ہوش سنبھالتے ہی شعر و شاعری گھر میں دیکھی. میرے ماموں بہت اچھے شاعر تھے، ان کا تپش تخلص تھا جی. تو شعر و شاعری گھر میں دیکھی. پھر والد مرحوم کے ساتھ وہاں ہمارے یہاں ایک میلہ ہوتا ہے نوچندی کا، وہاں بہت بڑا مشاعرہ ہوا کرتا تھا. والد مرحوم کے ساتھ میں اس مشاعرے میں جایا کرتا تھا. کوئی پروگرام نہیں دیکھتا تھا، صرف مشاعرے میں. اچھا. بڑا شوق تھا، حالانکہ شعر سمجھ میں نہیں آتے تھے لیکن اچھا لگتا تھا شاعر کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر. تو تب سے ہی شوق بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر اس کو کچھ ہوا دی میرے ماموں نے، تو جو محسوس کیا کوشش کرتا تھا کہ الفاظ کی شکل میں اسے ڈال دوں. تو جب نوجوانی کی عمر میں میں پڑھائی میں آیا، دوران تعلیم ایک شعر کہا تھا میں نے کہ میں وہ بے آسرا پرندہ ہوں جس کا کوئی بھی آشیاں نہ ہوا. بہت خوب. تو میری بڑی بہن نے بڑی حوصلہ افزائی کی تھی. اچھا. شعر سن کر میرے ماموں نے بہت تعریف کی تھی. اس کے بعد میں نے شعر کہنا باقاعدہ شروع کیا. ہمارے میرٹھ میں کالج ہے فیضیام کالج سے لی. تو وہاں ہمارے ایک بہت اردو کے اچھے شاعر ملازم تھے آفس میں، حفیظ میرٹھی صاحب. جی جی. ان کا بڑا نام ہے اردو ادب میں. تو حفیظ میرٹھی صاحب سے میں نے پہلی اصلاح لی تھی. اچھا. آغاز میرے اصلاح کا ہوا حفیظ صاحب سے. جی. گھر میں تو میرے ماموں تھے ہی، لیکن باقاعدہ میں نے آغاز کیا تھا حفیظ میرٹھی صاحب. مطلب آپ کی شاعری کا جب آغاز ہوا تو صرف حفیظ میرٹھی صاحب ہی آپ کے استاد رہے؟ استاد کیا، وہ مشورہ، ان سے مشورہ لیتے تھے آپ؟ میں ان سے مشورہ لیتا تھا. میرے بزرگ تھے اور بہت اچھے شاعر تھے، تو ان سے میں نے اصلاح لینا شروع کی. اس کے بعد پھر میرے ماموں بھی تھے. پھر ماہرہ، آپ کو ایک بات بتائیں کہ ایک ہندوستان کے نامور شاعر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، پروفیسر وسیم بری. جی، بہت نام سنا ہے. تو ان سے میں بہت متاثر تھا. میں ان کو مشاعرے میں سنتا تھا، ان کے کلام سے، ان کے ترنم سے، ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا. اچھا. تو ان سے میرے تعلقات ہوئے. پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ رشتے میرے بہنوئی ہو گئے. اچھا، بہت اچھا. سلسلہ تلمذ یعنی اصلاح کا سلسلہ ان سے بھی جاری رہا. اچھا. تو ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے غزلیں بھی کہیں، کچھ گیت بھی کہے. عرفان صاحب، مستقل طور پر کوئی آپ کا استاد رہا ہے؟ مستقل تو کوئی بھی نہیں رہا، وسیم صاحب کو ہی دکھایا. اور وسیم صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ انسان اپنا استاد خود ہو سکتا ہے. بالکل. اور وہ اس طرح کہ آپ جو کہتے ہیں اسے کہیے اور رکھ دیجئے. تھوڑے دن بعد، 10-15 دن بعد دوبارہ اس کو دیکھیے تو آپ کو اس میں خامیاں خود نظر آ جائیں. بالکل. اور حقیقت میں ماہرہ میں نے ایسا کیا اور واقعی ان کی بات سچ ثابت ہوئی کہ میں بعد میں نکال کر کوئی غزل وغیرہ یا کوئی اپنا مضمون دیکھتا تھا تو اس میں خامیاں خود بخود نظر آ جاتی تھی. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے نظمیں زیادہ کہی ہیں یا غزلیں زیادہ کہی؟ نہیں، نظم تو بہت کم ہی کہی ہیں. غزلیں میں نے کہی ہیں یا تھوڑے بہت گیت بھی کہے ہیں. گیت بھی کہے ہیں. کیونکہ وسیم صاحب کا جو گیت پڑھنے کا اور گیت کہنے کا انداز تھا تو وہ ظاہر بات ہے، میں نے جیسے تم سے کہا کہ بہت متاثر تھا تو اس سے میں نے تحریک حاصل کی اور میں نے گیت بھی کہے. عرفان صاحب، کچھ بند ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے. بند تو میں سنا دوں گا جی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا شعر میرا ہوگا. پہلی غزل کون سی تھی جو حفیظ صاحب نے اصلاح کی؟ جی بالکل بالکل. اور ظاہر بات ہے ان دنوں میں نوجوان تھا، 13-14 سال کی عمر تھی. تو حفیظ صاحب نے جو غزل کی تھی اصلاح، اس کا مطلب تھا کہ ساتھ عشرت کا کبھی راس نہ آیا ہے مجھے. بہت اچھا. اور غم کا احساس مسرت میں کر آیا ہے مجھے. واہ 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 واہ. اور دوستوں سے بھی کہیں بڑھ کے میرا ساتھ دیا، غم نے ہر حال میں سینے سے لگایا ہے. بہت خوب. یہ غزل تھی، یہ شروع ابتدائی غزل تھی جس کو حفیظ صاحب نے نوک فلک درست کی تھی. جی. تو اس کے بعد بتدریج سفر جاری رہا، کہتا رہا. لیکن کبھی میں نے خود کو
प्रोफेशनल नहीं समझा अपने आप को, यानी मुशायरे में की दुनिया में मैं एज ए पेशेवर शायर कभी शामिल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की कि इसको अपने शौक और ज़ौक़ तक ही रहने दूं, तो वहां तक महदूद किया इसको। इरफान साहब, शायरी की दुनिया में क्या आपका कोई आइडियल रहा है? आइडियल बिलाशुबा आज के दौर के जो है वसीम साहब है, और मैं साहिर साहब से, साहिर लुधियानवी से बहुत ज्यादा मुतासिर रहा। अच्छा। उनकी जो शायरी है वो शायरी बराए जिंदगी है, हकीकी उन्होंने रोशनी डाली है जिंदगी के जलते हुए पहलुओं पर, उन्होंने अपना कलम उठाया है। उनकी नज़में देख लें, उनकी गज़लें देख लें, तो उनसे बेहद मुतासिर रहा। और इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल मेरे ज़बरदस्त, वो मैं उनका मद्दाह रहा। लेकिन साहिर लुधियानवी साहब ने, और आज के दौर में प्रोफेसर वसीम बरेली और डॉक्टर बशीर बदर जी, इनके कलाम से काफी मुतासिर रहा जी। अक्सर आपकी जो गज़लें हैं मैं रसाइल वगैरह में पढ़ती रहती हूँ, तो ये बताइए कि रसाइल में शाया होने का सिलसिला आपकी गज़लों का कब से चल रहा है? मेरा पहला गीत सन 1972 में शमा में शाया हुआ था। जी, शाया हुआ। मैंने शमा में, यूनुस देहलवी साहब उसके मुदीर थे, उनको गीत भेजा, कई महीने हो गए कोई जवाब नहीं। उसका बड़ा शौक था, शमा काफी मकबूल एक उर्दू का मैगजीन था, रिसाला काफी मकबूल। तो गीत भेजा, जवाब नहीं आया, तो इसमें इस अरसे में 2-3 साल गुजर गए। लेकिन उसके बाद अचानक यूनुस देहलवी साहब का पता है कि आपका गीत बिरहन मौसूल हो गया था और वो फला महीने के शमा में और फला महीने के सुषमा में शाये किया जा रहा है। तो मेरा पहला गीत बिरहन के उन्वान से शमा में शाये हुआ था। और पहली गजल मेरी रोशन अदब, एक मैगजीन निकलता था दिल्ली से, उसमें शाये हुई थी। उसके बाद न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी का एक मैगजीन है पालिका समाचार, जो आज भी निकल रहा है, उसमें मेरी पहली गजल शाये। बहुत अच्छा। इरफान साहब, हमने सुना है कि आप ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आप उससे जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, इस बारे में कुछ हमें और हमारे नाजरीन को बताएं। 1966-67 में रेडियो सुना करता था, उर्दू सर्विस सुनता था, तो मुझे उनके बोलने का, वहाँ के जो अनाउंसर थे उनके बोलने का अंदाज, उनके प्रोग्राम बहुत पसंद आते थे। हालांकि बहुत छोटी उम्र थी, उसके बावजूद मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। तब से मैंने ख्वाब था मेरा ये कि मैं किसी तरह रेडियो पर जाऊँ। हमारा, आपको एक बात बताऊँ, जब मैं 10वीं में आया तो हमारे स्कूल का टूर दिल्ली घूमने आया। अच्छा। तो हमारे टीचर हजरात के साथ तमाम तलबा तो दिल्ली घूम रहे थे और मैं सबकी नजर बचा के भागकर रेडियो आ गया था। और रेडियो में घुसना चाहा, लेकिन वहाँ जाहिर बात है कि एंट्री नहीं हुई, दाखिला नहीं मिला, तो मैं बड़ी हसरत से बाहर खड़े होकर उसकी बिल्डिंग को देखा करता था। फिर खुदा क्या करना, ऐसा हुआ कि वहाँ मेरा जो दरवाजे वहाँ के वाह हुए मेरे लिए, वो एक प्रोग्राम होता है नौजवानों के लिए, शायद आपने कभी सुना हो या उसमें हिस्सा लिया हो, नई नस्ल नई रोशनी। जी, सुना है। उसमें मैंने शिरकत की, वहाँ मुशायरों में शिरकत की, जो नौजवान होते हैं उनके मुशायरे हुआ करते, उसमें शिरकत की। उसके बाद फिर मैं 1980 में जी यहाँ अनाउंसर हो गया। बहुत अच्छा। उर्दू सर्विस में जी। तो कॉन्टेक्ट बेस पर हुआ और आज तक मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और बस यही है कि शौक है और कर रहा हूँ प्रोग्राम। जी। नाजरीन, हम बात कर रहे थे इरफान आज़मी साहब से। वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, हम वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे मौजूद हैं जनाब इरफान आज़मी साहब, जो उर्दू के मशहूर मारूफ दिल्ली के शायर हैं। हम बात करते हैं और सवाल पूछते हैं इरफान आज़मी साहब से। इरफान आज़मी साहब, एक बार और आपका फिर से इस्तकबाल है। इरफान आज़मी साहब, ये बताइए कि पहले का जो ज़माना था, उस ज़माने में जो शायर होते थे, उस ज़माने में जो शायरी होती थी, जो उर्दू की खिदमत होती थी, क्या आपको ऐसा लगता है कि वैसी शायरी, वैसे शौरा आज भी मौजूद हैं? थोड़ा माहौल में तब्दीली तो आई है। उस ज़माने में सिर्फ शेरों को सुना जाता था, अच्छे कलाम को सुना जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि ये शायर बहुत कदीम है या नया कहने वाला है। मेरे याद है कि मैंने इब्तदाई दौर में, जब मेरे इब्तदा हुई है मुशायरों में, तो मैंने गज़ल पढ़ी है और कैफी आज़मी साहब मौजूद हैं और मेरे अच्छे शेर पर उन्होंने बेसाख्ता दाद दी है, सुभान अल्लाह मियाँ क्या कहने। अच्छा। तो शेर सुने जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज शेर के साथ साथ शेर भी सुने जाते हैं, लेकिन उसके से ज्यादा आजकल तरन्नुम का दखल है, अच्छी आवाज वाले।
तो उसका एक फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि अच्छा तरन्नुम सुनने को मिलता है, नुकसान ये है कि तरन्नुम में अच्छी शायरी कहीं फना हो जाती है। जी ये बहुत कम देखने को मिला है कि अच्छे शेर भी हों और अच्छा तरन्नुम भी हो। हम्म, तो ये होता है कि तरन्नुम अच्छा है, शायरी बिल्कुल वाजिबी है, जी आमियाना शायरी है। क्योंकि शायरी तरन्नुम, एक अच्छी शायरी तरन्नुम की मोहताज नहीं। मोहताज नहीं है। इरफान साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मुशायरों का मयार किस चीज से गिरा है? मयार गिर गया है। जी, जी। और देखिए, ये कहा जाता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि शुआरा की तरफ से मयार गिरा है या सामीन की तरफ से मयार गिरा है, दोनों ही इसके जिम्मेदार हैं। सवाल ये है कि हमारे शुआरा अगर अच्छा ही कहेंगे और वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें महज कामयाब होना है, हमें आइंदा के मुशायरे के लिए जगह बनानी है, अपने आप को सीट रिजर्व करनी है, और वो म्यारी ही मुस्तकिल कलाम कहेंगे और पेश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि सामीन जो है वो नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। अब जब आप ये सोचते हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कि वाह वाह सस्ती हो, तो आप तरन्नुम में हल्के शेर पढ़ते हैं। तो वही बात है ना कि अगर आप तरन्नुम से हल्के शेर देंगे, आपका तरन्नुम अच्छा है तो सामीन सुनेंगे। जी जी। लेकिन अगर आप मैयार को बरकरार रखेंगे, एक दौर एक वक्त वो आएगा कि सामीन मजबूर हो जाएंगे बिल्कुल अच्छा शेर सुनने। बिल्कुल ये फर्क है। बिल्कुल। इरफान साहब, जैसे उस जमाने में शायरी होती थी, जैसे उस जमाने में शायर होते थे मयारी शायर, क्या वैसे शायर आपको आज देखने को मिलते हैं या कुछ माहौल बदला है, शायर बदले हैं? है, बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं। देखो, वक्त के साथ साथ हालात भी बदले और हालात के साथ साथ शायरी भी बदली है। फिर जमाने में बड़ी दक्कनी हुआ करते थे, जी जी सिराज औरंगाबादी जी थे, जी। तो वो शोरा हुए हैं, उनके साथ साथ भी बदलते रहे। मीर तकी मीर भी आए, फिर बदले मोमिन खां मोमिन, जी, जी। असदुल्ला खां गालिब आए, जी फिर वक्त बदला और दाग देहलवी हुए, अल्लामा इकबाल हुए। तो हालात के तहत हालात बदलते रहे, शायरी भी हालात हाजरा पर बदलती रही। मिसाल के तौर पर मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। देखिए, 1991 में सद्दाम हुसैन पर उन्होंने एक शेर कहा था। अमेरिका इराक जंग हो रही थी, तो उन्होंने लाल किले के मुशायरे में शेर पढ़ा था। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं शायर हूँ, शायर की जबान में कहता हूँ मैं, समझ आप जाएंगे। जी तो बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि उसे आबला पाका अकेलापन देखो, वाह वाह। उसे आबला पाका अकेलापन देखो, जो रेबजारों का नक्शा बदलने वाला है। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। तो देखिए, सब कुछ कह दिया दो लाइनों में, दो बिल्कुल। शायर वो बात अपनी शायरी के जरिए कह सकता है जो बात वो कभी जबान से नहीं कह सकता, और शायर पे देखिए कोई पाबंदी भी नहीं होती है। ठीक है, आज मुशायरों में जगह हासिल करने के लिए, सामीन की दाद हासिल करने के लिए हमारे बहुत से शुआरा ऐसे हैं जो खुलकर सियासी अशार पढ़ते हैं, जो कि उर्दू अदब और उर्दू शायरी के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा इरफान साहब, जैसे कि मुशायरों के जरिए उर्दू की तो कोई खिदमत हो नहीं रही है। माहिरा, हाँ। हमारी बात काटकर बहुत माजरत के साथ एक बात हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे माफ कर दें, क्योंकि मैं भी उसी कबीले का हूँ, यानी शुआरा में से हूँ। जी जी जी। तो मुझे माफ कर दें कि आजकल उर्दू अदब की कोई खिदमत नहीं कर रहा, अपनी खिदमत कर रहा है। मेरा सवाल आपसे यही था इरफान साहब कि उर्दू की खिदमत तो हो नहीं रही है मुशायरों के जरिए, बल्कि पूरी पूरी सियासत हो रही है, और किसी भी शख्सियत को मुशायरों के अंदर बिल्कुल नाजेबा अल्फाज बोल दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं तो कतई इसको कंडेम करता हूँ, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके हक में नहीं हूँ। और ये जो ग्रुप बंदियां हो रही हैं मुशायरे बिल्कुल, में, ये भी मुनासिब नहीं है। जी देखिए, ठीक है, एक जमाने में आपको माहिरा याद होगा कि मोमिन खां मोमिन और मिर्जा गालिब में काफी कुछ चलता था। बिल्कुल, हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद याद होगा कि जब मुशायरे में मोमिन खां मोमिन ने गजल पढ़ी, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी तो वादा वफा नहीं होता। लेकिन जिस वक्त वो शेर पढ़ा कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो गालिब ने बेसाख्ता कहा था कि अब तक की तमाम शायरी मुझसे ले लो, मोमिन ये शेर मुझे। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था ये दिल लोग हुआ करते थे जमाने में, शुआरा भी फराग दिली आपस में भले ही कुछ हो,
लेकिन फन के एतबार से, शायरी के एतबार से उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। इरफान साहब, क्या उस जमाने में जो शायरी होती थी, उस जमाने में दाद दी जाती थी शायर को या नहीं? क्योंकि अच्छे शेर पर जी। दाद मिलती थी, ये नहीं देखा जाता था कि ये अपना है, अपने ग्रुप का है या गैर के ग्रुप का है, जी। इससे हमारा ताल्लुकात है या नहीं है, और अच्छे शेर पर भरपूर दाद मिलती है। इरफान साहब, ये बताइए कि क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा ऐसा हुआ है कि जिसका असर आपके दिल और दिमाग में हुआ हो, और उस हादसे को, उस वाक़े को आपने अपनी शायरी में पेश किया हो? हादसा तो रूनुमा इंसान की जिंदगी में होते ही रहते हैं, और शायर तो कहा जाता है कि हसास होता है, जी, बिल्कुल। सेंसिटिव होता है, और जिस बात को सोचता है उसी को अल्फाज की शक्ल में ढाल देता है। तो मेरे साथ घरेलू कुछ वाकयात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरठ के एक बहुत ही अदबी और बड़े घराने का हूँ, जी, जी, इसके जी। बावजूद मेरे साथ कुछ वाकयात हुए हैं जो सदमात से मैं गुजरा हूँ, तो वो भी कहीं कहीं मेरी शायरी में झलक नजर आती है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो इतना ही कहूँगा। जी जी, हमारे नाजरीन को कुछ अशार सुनाइए अच्छा, शेर सुनना है? जी, तो तरन्नुम से। तरन्नुम से मैंने पढ़ना बंद कर दिया तकरीबन 15 चलिए। साल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तहत से पढ़ दीजिए। मैं नाजरीन की नजर कर रहा हूँ और महरा आपकी नजर जी। कर रहा हूँ। एक छोटी शुक्रिया। बहर का एक मतला और 2 शेर, बहुत छोटी बहर है, जी और उम्मीद है कि नाजरीन को भी पसंद जी, आएगी आएगी, और बिल्कुल। आपको। जी, आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं इरफान साहब। छोटी बहर का मतलब है कि आंसू बिखर रहे हैं, वाह 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 वाह। आंसू बिखर रहे हैं, कर्जे उतर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत गहराई वाली बात है। आंसू बिखर रहे हैं, जी कर्जे उतर रहे हैं, और सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं। और माहिरा ये शेर बतौर खास, जी शुक्रिया। इसमें कैफियत, एक इंसानी दिल पर जो कैफियत का आलम होता है कभी कभी, उसको मैंने कोशिश की है जाहिर करने की, कि सदियां गुजारने पर लम्हे निखर रहे हैं, ऐ काश वो ना आए, ऐ काश वो ना आए, हम याद कर रहे हैं। अरे वाह वाह, बहुत ऐ खूब। काश वो ना आए, हम याद कर रहे हैं। इरफान साहब, इसमें वो कौन है? वो तो कोई भी हो सकता है। जी वो तो देखिए, इसको कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहे। अच्छा, चलिए, राज ही रखते हैं। ऐ काश वो ना आए, हम याद कर रहे हैं। बहुत खूब। तो ये तो एक मतलब और 2 शेर थे। वो गजल मेरी उन दिनों बहुत मकबूल हुई थी मुशायरों में। मैं नजर कर रहा हूँ जी कि इशरतों में भी दिल उदास रहा, वाह वाह। इशरतों में भी दिल उदास रहा, ये वो तन है जो बेलिबास रहा। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। इशरतों में भी दिल उदास रहा, ये वो तन है जो बेलिबास रहा, और उनके आने की आस थी मुझको, उनके आने की आस थी मुझको, उनके आने पे महवे यास रहा। बहुत खूब, वाह 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 वाह। उनके आने की आस थी मुझको, उनके आने पे महवे यास रहा, और जो तेरे इंतजार में गुजरा, जो तेरे इंतजार में गुजरा, बस वही दौर मुझको रास रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो तेरे इंतजार में गुजरा, बस वही दौर मुझको रास रहा। और माहिरा वो शेर जो मुझे ख्वाब में इल्हाम हुआ था, जी कि इरशाद। मेरे दिल में, ये शेर मुझे ख्वाब में हुआ था, मेरे दिल में कयाम से पहले, मेरे दिल में कयाम से पहले मुद्दतों दर्द बेलिबास रहा। अरे वाह 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 वाह, बहुत मेरे खूब। दिल वाकई में लग रहा है कि ये शेर, कयाम से पहले वाह 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 वाह। मुद्दतों दर्द बेलिबास रहा। और गजल का आखिरी शेर, और उम्मीद है कि तुम्हें पसंद जी आएगा, जी जी बिल्कुल। कि एक लम्हे की बस खुशी के लिए, एक लम्हे की बस खुशी के लिए, मैं कई रोज तक उदास रहा। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। एक लम्हे की बस खुशी के लिए, जी मैं कई रोज तक उदास रहा, जी इशरतों में भी दिल उदास रहा, ये वो तन है जो बेलिबास रहा। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। इरफान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, कि आज के जो नौजवान शायर हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल शायरी कर रही है, आप उनको बतौर शायर क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
मैं मशवरा यही दूंगा कि देखिए भाई शायरी कीजिए और उर्दू अदब के अल्फाज जरा उन पर अपनी तवज्जो करें या उनका मुताला करें। उसके बाद ये असातिज़ा को पढ़ें और जी। जो हमारे दौर कदीम के शुअरा हुए हैं और असातिज़ा हुए हैं उनको पढ़ें, उनसे बिल्कुल। कुछ हासिल होगा। वरना ऐसा न हो कि अभी एक मुशारिन में शरीक हुआ, वहाँ एक नौजवान शायर आए और फरमा रहे हैं कि मैं आपकी नजर एक अशार कर रहा हूँ। अरे यार अफसोस होता है ना। बहुत गलत है। या बांधते हैं वो मिसरे में मेरी जानम, मेरी जानम, मेरी जानम। आपको पता है जानम जानम फारसी का है। बिल्कुल फारसी फारसी का का वर्ड है। जानम का मतलब ही है मेरी जान। बिल्कुल और बिल्कुल वो बांध रहे हैं मिसरों में मेरी जानम। बिल्कुल तो बिल्कुल ये है कि ये बगैर मुतालिक है और बगैर उस्ताद के। तो आप शायरी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। शायरी तो बहुत अच्छी सिनफ है। आप गजल में भी कहें, नज्म कहें, कुछ भी कहें, लेकिन एक तो ये कि आप उर्दू का मुताला कीजिए, उर्दू अल्फाज देखिए, असातिज़ा शुअरा को पढ़िए और कोई ना कोई उस्ताद जरूर बनाइए। जी 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 उस्ताद से इसलाह लीजिए, क्योंकि इसलाह से आपका जो फन है वो और निखर के आएगा। जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और तरन्नुम पर ध्यान न दें। अगर आवाज अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागा। लेकिन अगर आवाज अच्छी नहीं है तो आपके कलाम जानदार और मेयारी होना चाहिए। जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमको उम्मीद है कि हमारे जो नौजवान शौरा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपके इस मशवरे पर और इस सलाह पर ज़रूर अमल करेंगे। मैं भी अमल करूंगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आज़मी साहब। मैं अपने दिल की बात कह सका, इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त हुआ है नाजरीन आपसे अलविदा कहने का। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी।